Hello, my dear children. Welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. Children, my name is Vandana and we are doing Science 7. This is your science book and the name of the book is Science Horizon Inspiring Tomorrow's Innovators. So, children, today we are going to start with chapter number 4 of the book, and the name of the chapter is Acids, Bases and Salts. What we are going to learn in this chapter? We are going to learn about acids, bases, indicators, properties and uses of bases, and properties and uses of acids. There are so many substances on earth. अर्थ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. We can classify into these categories. One way of classification is to classify them in acids, bases and salts. So एक तरीका है इन्हें इस कैटेगरी में डिवाइड करना. We taste so many substances every day. Some substances are sweet, some are sour or salty, or some are bitter in taste. So जो भी चीजें हम खाते हैं उनके टेस्ट अकॉर्डिंगली होते हैं जो यहाँ दिए गए. The taste of different substances differ due to the presence of different chemical substances in them. All the sour substances contain acids in them. जितने भी sour substances होते हैं उनके अंदर acid होता है. Many acids occur naturally in sour substances like citrus fruits, tamarind, curd, etc. So बहुत सारे acids होते हैं जो sour होते हैं, जैसे कि citrus fruits जो होते हैं, जैसे कि लेमन और जैसे कि tamarind, curd, etc. Some substances are bitter in taste. They contain bases in them. So कुछ substances ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, bases होता है. If we rub baking soda on our palm, it feels soapy. अगर हम baking soda को अपने हाथ में लेंगे और उसे rub करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कुछ soapy feel हो रहा है, जैसे हमने soap लगा रखा हो. Such substances which are bitter in taste and soapy in touch are bases. So ऐसे substances जो bitter taste में होते हैं और touch करने पे soapy feel करते हैं, ऐसे substances को हम bases कहते हैं. The word acid is derived from the Latin word acidus. Acid word जो है acidus word से derive किया गया है. This means sour. इसका meaning होता है sour. The substances that contain acid in them is called acidic substances. वो substance जिनके अंदर acidic form होता है उसे हम acidic substances कहते हैं. Acid का taste आता है उसे acidic substance कहते हैं. There are some acids that we use in our daily life. कुछ acids हैं जो हम अपने daily life में use करते हैं, जैसे acetic acid, and the example is vinegar. Tartaric acid जैसे tamarind, lactic acid जैसे curd, ascorbic acid जैसे कि citrus fruits. These are weak acids. ये जितने भी acids हैं यहाँ से यहाँ तक mention किए गए ये सारे weak acids हैं जिससे हमारे body को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है. Hydrochloric acid and sulfuric acid and nitric acid are strong acids. अब यहाँ पे ये जो acids के नाम दिए गए ये तीनों जो है strong acids हैं. अगर हम इन्हें touch करेंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी को हार्म पहुंचेगा. So children, here few examples are given. The lemon, tamarind and vinegar is in front of you, and these are also acids. Now here are list of acids and the sources are given. First is ascorbic acid जो citrus fruits में से मिलते हैं, acetic acid vinegar से, citric acid lemon, lactic acid sour milk और curd, formic acid in ant and bees sting, इसमें हमें formic acid मिलता है. Tartaric acid in tamarind, malic acid in apple, tannic acid in tea, oxalic acid in spinach and hydrochloric acid in stomach. Acids are corrosive in nature. They may burn or are skin if touched. अगर हम अपने स्किन से इन एसिड्स को टच करेंगे तो हमारी स्किन जो है बर्न कर सकती है. That's why you are instructed not to touch the toilet cleaner because they contain strong acid in them.
क्योंकि जो टॉयलेट क्लीनर होते हैं उसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और अगर हम उसे छू देंगे हमारे हाथ जल सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इन टॉयलेट क्लीनर्स को हमें नहीं टच करना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर स्टमक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है वो भी हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड, वो फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। बट समटाइम्स व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ दिस एसिड, कई बार होता है कि ये जो एसिड है वो हमारे स्टमक में ज्यादा अमाउंट में आ जाता है, तो क्या होता है, वी फील बर्निंग सेंसेशन, हमें ऐसा लगता है पेट में जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एसिडिटी, और इसे ही हम एसिडिटी खाते हैं जिसमें इनो या फिर नींबू पानी का यूज करते हैं। एसिड्स आर नॉट केप्ट इन मेटालिक कंटेनर्स, एसिड को कभी भी हम मेटल के कंटेनर के अंदर नहीं रखते हैं एज ए रिएक्ट विद मेटल्स, क्योंकि मेटल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। Rather, these are always kept in glass container, इसलिए इन्हें ग्लास के कंटेनर में ही रखा जाता है। Acids give away hydrogen ion, एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन होता है, and sometimes the gases present in the atmosphere dissolve in water droplets to form some weak acids that come down as rain. So कई बार ऐसा होता है जब आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा, तो जब एसिड रेन होता है तो क्या होता है, रेन तो आती है पर उसमें रेन में एसिड मिला हुआ होता है, और ये एसिड रेन हमारे जो ट्रीज हैं, हम ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है, क्योंकि एसिड गिरता है आसमान से जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है और ट्रीज के लिए हार्मफुल है। सो कई बार ऐसा होता है कि जो गैसेस होते हैं, हार्मफुल गैसेस जिसके अंदर ये एसिड मिले हुए होते हैं, वो एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है उससे मिल जाते हैं और मिल के कुछ वीक एसिड्स बनाते हैं, जिससे वो क्लाउड्स के फॉर्म में बन जाते हैं और लास्ट में एसिड में बन जाते हैं। दिस एसिड दैट अकर्स इन नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंसेस लाइक सिट्रस फ्रूट्स, टैमरिन एक्सेट्रा आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। सो ये जो एसिड्स जो सिट्रस फ्रूट्स या टैमरिन में होते हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं, वाइल हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। लेकिन ये जो हार्मफुल एसिड्स हैं हमारे लिए उन्हें हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो वीक एसिड्स हैं। मिनरल एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड, और जो मिनरल एसिड है वो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। These are strong acids. Example, sulfuric acid is the strongest acid. So यहाँ पे जो sulfuric acid है and the formula is given here H2SO4. This is the strongest acids of the all. Now let's learn about the bases. What are bases? Bases are bitter and soapy. ये जो है bitter taste में होते हैं और soapy होता है feel करने में। Bases give away hydroxyl ion. Bases are produced by dissolving metal oxide in water. Bases को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, मेटल ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करके। Examples of bases are sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide, etc. These are found in soaps, baking soda, washing soda, टूथपेस्ट एक्सेट्रा। सो इन सब जगहों पे ये बेसिस हमें मिल सकते हैं। कास्टिक सोडा इज द केमिकल नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो कास्टिक सोडा एक नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कास्टिक पोटैश ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो दूसरा नाम है वो है कास्टिक पोटैश। स्लेक लाइम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो दूसरा नाम है वो है स्लेक लाइम। द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, विच इज ऑल्सो एन एंटासिड। ये एंटासिड का काम करता है, मीन्स एसिड के अगेंस्ट ये काम करता है। बेसिस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, ये जो बेसिस होते हैं ये एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कम कर देते हैं। बेसिस आर आल्सो वीक एंड स्ट्रॉन्ग, बेसिस जो होते हैं वो बहुत ही वीक भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं।
Sodium and potassium hydroxides are strong bases. So sodium और potassium hydroxide जो होता है ये दोनों strong bases होते हैं. So here these all items contain bases in them. Now here the name of some bases are given. Sodium hydroxide and the formula is NaOH and it is present in soap. Potassium hydroxide, the formula is KOH and it is also present in soap. Ammonium hydroxide, NH40H and it is present in window cleaner. Calcium hydroxide, Ca bracket OH bracket close. Lime water, this is present in the lime water. Magnesium hydroxide is present in milk of magnesia and the formula is MgOH. Now children, here some questions are given, you have to answer them, and the questions are what are acids and what are bases. Name the acid present in sting, curd, tamarind and vinegar. Name for substances of daily use that contain bases, and what are the difference between the taste of an acid and a base. So this one I am going to do. Acid taste, acidic in nature, and the bases are taste bitter and also they feel soapy. So this is the basic difference between the two. The rest questions you have to do on your own. Now all the bases are not suitable in water, not soluble in water. जितने भी bases हैं सारे ही पानी में mix नहीं होते. Those which are soluble in water are called alkalis. So जो भी पानी में मिल जाता है उन्हें हम alkalis कहते हैं. Now what are indicators? We have just learned that acids are sour and bases are bitter. So अभी हमने पढ़ा था कि acid जो है sour होते हैं taste में और जो bases होते हैं वो bitter taste होता है. But at the same time we also came to know that these are corrosive in nature. और तभी हमें ये भी पता चला कि corrosive होते हैं nature में. They can burn our skin if touched. अगर हमने इसे टच किया तो हमारी स्किन को ये बर्न कर सकते हैं. So it is not possible to touch or taste any substance in order to taste. So किसी भी substance को टेस्ट करने के लिए उसे टेस्ट करना is not necessary if it is an acidic or a base. So we use some special substances called indicators for this purpose. So कुछ अलग चीजें हम यूज करते हैं इन्हें टेस्ट करने के लिए कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, और टेस्ट किससे करते हैं, हम उसे इंडिकेटर से टेस्ट करते हैं. Indicators are those substances which react differently towards a definite property of acid and basic medium. So ये indicators क्या करते हैं, कोई भी एसिडिक या बेसिक स्ट्रक्चर के साथ ये डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं, डिफरेंट रिएक्शन देते हैं. दिस प्रॉपर्टी मे बी कलर और स्मेल. इंडिकेटर्स में शो डिफरेंट स्मेल और कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम. सो ये प्रॉपर्टी जो होता है ये अलग कलर या फिर स्मेल में होता है, और इंडिकेटर जो होते हैं वो दिखाते हैं अलग स्मेल या कलर जो कि एसिडिक या बेसिक होता है मीडियम में. मोस्टली वी प्रेफर द इंडिकेटर्स दैट शो डिफरेंस इन कलर in acidic and base because color change is easily detectable. So ये जो indicators होते हैं ये different color change दिखाते हैं जिससे पता चल जाता है कि the following substance is acidic or basic in nature. Some common indicators are phenolphthalein, methyl, orange, turmeric, juice of red cabbage, and most widely used indicator is litmus test. Litmus is a water soluble dye obtained from the lichen plant. So lichen plant में से ये litmus बनाया जाता है, and here you can see the paper that this is the litmus paper that this person is holding. It has a purple color. जो litmus paper होता है उसका ये purple color होता है. And in distilled water, if it comes in contact with acid, जब ये acid के contact में आता है litmus paper तो ये red color का हो जाता है. ये you can see. And with base it turns blue. और जब वो base के contact में आता है तो ये blue color का हो जाता है. So this when it turns blue
देन इट इज अ बेस, और जब ये जो है रेड हो जाता है तो ये है एसिड. With the base it turns blue. Litmus is also available as strips of red and blue litmus paper. So ये जो litmus paper है रेड और ब्लू कलर की आती है. Turmeric is also a natural indicator. Turmeric भी एक natural indicator है. It retains its yellow color with acid and turns red with base. So acids के साथ ये येलो कलर का ही दिखाई देता है. जो हमारा टर्मरिक होता है, जो हल्दी हम घरों में यूज करते हैं, और जब ये बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये रेड कलर का हो जाता है. Now here the table is given, the indicators are given, and what the color they gain. Color in acidic medium and color in basic medium. So इनका एक्चुअल कलर क्या है? जब ये एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो इनका कलर क्या होता है, और जब ये बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो इनका कलर क्या होता है. लेट्स रीड अबाउट देम. फर्स्ट इज phenolphthalein and it's कलरलेस. इसका कोई कलर नहीं है. जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर चेंज नहीं होता है, वो वैसे रहता है कलरलेस. लेकिन जब ये बेस के कांटेक्ट में आता है तो रेड कलर में चेंज होता है. नेक्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज. ये ऑरेंज कलर का होता है. एसिड के कांटेक्ट में आते ही ये रेड कलर का हो जाता है, लेकिन जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये येलो कलर का हो जाता है. लिटमस पेपर इट इज पर्पल इन कलर एंड एसिड के कांटेक्ट में रेड हो जाता है, बेस के कांटेक्ट में ब्लू. टर्मरिक जो है येलो कलर का होता है, एसिड के कांटेक्ट में येलो रहता है, लेकिन जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये रेड कलर का हो जाता है. चाइना रोज या फिर गुड़हल का जो फूल होता है वो पिंक कलर का होता है. जब वो एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो मजेंटा मीन्स डार्क पिंक का हो जाएगा, लेकिन जब वो बेस के कांटेक्ट में आएगा तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है. रेड कैबेज पर्पल कलर का होता है. एसिड के कांटेक्ट में रेड रहता है, लेकिन जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है. सो दीज आर अ फ्यू इंडिकेटर्स. और कैसे वो चेंज होते हैं, कैसे वो एसिड या फिर बेस फॉर्म में होते हैं, चेंज होते हैं, दैट वी हैव लर्नड. Now let's learn the properties and uses of acids. क्या क्या properties और uses हैं? Let's see. Properties of acids क्या हैं? Acids are sour and taste. Acid जो है sour होते हैं, taste. These are corrosive in nature. ये corrosive होता है nature में. Acid turn a blue litmus red. Acid क्या करते हैं? Blue color के litmus को red color का कर देते हैं. Acid readily react with water and evolves a lot of heat. एसिड जो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और बहुत ज्यादा हीट क्रिएट करता है. इफ अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन एसिड इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. अगर एसिड के अंदर थोड़ा सा भी पानी मिक्स है तो ऐसे एसिड को हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं. एंड इफ वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन दैट एसिड इट इज कॉल्ड अ डाइल्यूट एसिड. और उसी एसिड में अगर ज्यादा अमाउंट में हमने पानी मिला रखा है तो ऐसे एसिड को हम डाइल्यूट एसिड करेंगे. कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता, ये डाइल्यूट बन जाता है. इफ वी हैव टू मिक्स एंड एसिड एंड वाटर, अगर हमें एसिड और वाटर को आपस में मिक्स करना है, वी शुड नेवर मिक्स वाटर टू एसिड. हमें कभी भी वाटर को एसिड में मिक्स नहीं करना चाहिए, बिकॉज इफ वी डू सो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस. क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे एसिड के अंदर अगर हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, which can break our test tube with a blast. और जिसकी वजह से टेस्ट ट्यूब हमारा ब्लास्ट कर सकता है. And the acid could be spilled out on our skin and clothes. और वो जैसे वो टेस्ट ट्यूब ब्लास्ट करेगा हमारे स्किन पे, हमारे क्लोथ्स पे, वो सारा एसिड आ सकता है. Rather we should mix small quantity of acid to water. तो हमें इसकी जगह क्या करना चाहिए, हमें पहले पानी लेना चाहिए ज्यादा, और स्मॉल क्वांटिटी 1 और 2 ड्रॉप एसिड का ही यूज होना चाहिए वाटर में मिक्स करने के, ताकि ये चीज ना हो. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द रिएक्शन विद मेटल्स. मेटल के साथ कैसा रिएक्शन होता है. डाइल्यूट एसिड्स प्रोड्यूस सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स. सो जो भी डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, जिसमें मींस एसिड की क्वांटिटी कम होती है, वाटर ज्यादा होता है, सो ऐसे जो एसिड्स होते हैं ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, ये सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स. जब ये मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करते हैं, सो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड. फॉर एग्जांपल 2Na, ये है सोडियम एक मेटल.
अब ये जब जो है H2HCl के साथ मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड मीन्स सॉल्ट मीन्स 2NaCl बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज. So these two things are made. However, this reaction does not take place with less reactive metals. ये जो भी reactions हैं वो less reactive metals के साथ नहीं होते, जैसे कि copper, silver, gold, etc. इन सब के साथ ये reaction नहीं होता. Now the next is reaction with carbonates. अब carbonates के साथ क्या reaction होता है? Metal carbonates are those compounds which have carbonates means CO3 group of in them. So ये जो metal carbonates होते हैं इसमें CO3 होता है and acids evolve carbon. acids क्या करते हैं? acids जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को they evolve carbon dioxide gas on reacting with carbonates. So जब acids carbonates के साथ मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है. फॉर एग्जाम्पल CaCO3 विच इज कैल्शियम कार्बोनेट, जब ये 2HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो CaCl2 मीन्स कैल्शियम क्लोराइड बनता है और H2O मीन्स वाटर बनता है और CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस thus evolves is used to extinguish fire. और इसमें से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो किस काम आती है? फायर को बुझाने के काम आती है, फायर को एक्सटिंग्विश करने के काम आती है. तो आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं उनमें ये कॉम्बिनेशन होता है. नाउ रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स. एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट इन वाटर. सो ये जो एसिड्स होते हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट ऑफ वाटर मैन्युफैक्चर करते हैं. फॉर एग्जांपल CaO मींस कैल्शियम ऑक्साइड जो एक मेटल ऑक्साइड है, व्हेन इट रिएक्ट्स विद H2SO4, जब H2SO4 मींस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो CaSO4 बनता है विच इज कैल्शियम सल्फेट और H2O रिलीज होता है. सो ये दोनों चीजें बनती है, कैल्शियम सल्फेट और मींस सॉल्ट और वाटर. रिएक्शन विद बेसिस. अब रिएक्ट जब बेसिस के साथ करता है तो क्या होता है? एसिड न्यूट्रलाइजेस बेसिस एंड फॉर्म्स सॉल्ट. सो ये जो एसिड्स होते हैं ये बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और वाटर और सॉल्ट बना देते हैं. फॉर एग्जांपल NaOH विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, और HNO3 विच इज नाइट्रिक एसिड, ये एक एसिड है. अब इन दोनों को जब हमने आपस में जोड़ा तो क्या बनेगा? NaNO3 मीन्स सोडियम नाइट्रेट जो कि एक सॉल्ट है, और दूसरा बनेगा वाटर मीन्स H2O. यूजेस ऑफ एसिड्स. अब क्या क्या यूजेस है एसिड्स के? लेट्स लर्न. एसिड्स सच एज विनेगर आर यूज्ड फॉर एज प्रिजर्वेटिव मीन्स अचार वगैरह जो हमारे घर बनते हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं. जैसे मम्मी जो हमारे क्या करती हैं, विनेगर डालती हैं अचार में ताकि वो लंबे समय तक हम यूज कर सकें. सो एसिड सच एज विनेगर, विनेगर को यूज किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव. एसिड्स आर यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर. एसिड को फायर एक्सटिंग्विशर में मींस यूज किया जाता है. सल्फ्यूरिक एसिड इज वाइडली यूज्ड इन कार बैटरी. ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कार की बैटरीज में यूज किया जाता है. सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, टेक्सटाइल, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, डिटर्जेंट एक्सेट्रा. सो ये सारी चीजें बनाने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है. नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव्स, मेटलर्जी एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. सो इन सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में हम नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं. Acids are also used in removing scales from boilers used in various industries. So जो भी boilers होते हैं उसमें जो भी scales पड़ जाते हैं उसे भी remove करने के लिए acid का use किया जाता है. Now what are the properties and uses of bases? Let's read. The properties of bases are bitter in taste and soapy in touch, and they turn the red litmus paper blue. They react with non-metallic oxides. For example, 2NaOH when mixed with CO2 means carbon dioxide
It gives Na2CO3 plus H2O means water. Now reaction with acid. जब acid के साथ react करता है तो क्या बनता है? Bases react readily with acid and neutralize them to produce salt and water. So अब bases जो है acid के साथ react करते हैं उसे neutralize कर देते हैं और salt और water produce करते हैं. For example, 2KOH which is potassium hydrochloride, hydroxide ये एक बेस है. अब जब इसे एसिड H2SO4 के साथ जो हमने मिक्स किया तो क्या होगा? K2SO4 which means potassium sulfate प्रोड्यूस कर रहा है, that is salt, and 2H2O means water. Now what are the uses of bases? Base के क्या क्या uses हैं? Bases are widely used in the soap industry. Soap industry में से use किया जाता है. Magnesium and aluminum hydroxides are used as antacid to cure acidity. So ये दोनों जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों यूज किए जाते हैं एज एन एंटासिड. किस कंपनी के द्वारा? बाय एसिडिटी, फॉर टू क्योर एसिडिटी. एसिडिटी को क्योर करने के लिए एज एन एंटासिड मींस मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है. These are widely used to neutralizing the effect of acids like in soil treatment for treating factory waste before letting them mix with water bodies. So acids जो है फैक्ट्रीज में बनते हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो जाते हैं किसी न किसी प्रोसेस से. सो वहाँ पे इन एसिड्स को जो है ट्रीट किया जाता है विथ द बेसिस, ताकि उन्हें वाटर बॉडीज में डालने से पहले उसे जो है बेस के साथ ट्रीट किया जाता है ताकि वो हार्म ना पहुंचा सके द वाटर एनिमल्स या अदर जो भी इस वाटर को यूज कर उन्हें हार्म ना पहुंचा सके. सिमिलरली ये जो है सॉइल ट्रीटमेंट के काम में भी आता है. बेसिस जो यूज होते हैं वो सॉइल को ट्रीट करने के काम भी आता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड स्लेक लाइम्स आर यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग. सो व्हाइट वॉशिंग मींस जो घर में जो हमारे पुताई होती है उसके लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक लाइम यूज करते हैं. ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं जिससे हम कपड़ों को ब्लीच करके प्योर व्हाइट कर सकते हैं. बेसिस आर ऑल्सो यूज इन पेपर इंडस्ट्री. बेसिस जो है पेपर इंडस्ट्री में भी यूज किए जाते हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ऑल्सो इन द मेडिसिन. तो इन सब जगहों पे भी बेसिस यूज किए जाते हैं. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ बेसिस. सो पेट्रोलियम को रिफाइन करना भी जो है बेसिस की वजह से ही पॉसिबल है, इससे ही किया जाता है. नाउ व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन और रिएक्शन एंड सॉल्ट्स. सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है और सॉल्ट्स क्या है? लेट्स रीड. द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं एसिड्स और बेसिस, तो इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं. Salt and water are produced in this reaction with the evolution of heat. तो इसमें क्या होता है? सॉल्ट और वाटर जो है दोनों प्रोड्यूस किए जाते हैं इस रिएक्शन में और ये जो है हीट प्रोड्यूस करता है. द मोस्ट कॉमन सॉल्ट इज टेबल सॉल्ट. जो सबसे ज्यादा कॉमन सॉल्ट है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो नमक हम खाते हैं, उसका फॉर्मूला है NaCl. That is formed due to the reaction of sodium hydroxide and hydrochloric acid. So एक कब बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सचर से बनता है. The formula is given here NaOH which is sodium hydroxide जो कि एक बेस है. जब इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मींस एसिड के साथ मिलाया जाता है तो NaCl मींस सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है वो बनता है प्लस वाटर बनता है which is H2O. Some other salts that are commonly used are, so कुछ other salts हैं जो commonly use किए जाते हैं वो है sodium carbonate which is NaCO3 commonly known as washing soda. So sodium carbonate को washing soda भी कहते हैं जिससे हम अपने कपड़े वगैरह धोते हैं. So this is also a salt. And sodium bicarbonate which is NaHCO3 commonly known as baking soda. Baking soda जो अपने खाने में डालते हैं that is also a salt. Potassium nitrate which is KNO3 commonly known as saltpeter used
टू मेक गन पाउडर बनाने के काम आता है, बंदूक की गोलियां बनाने के काम आता है, क्रैकर्स के काम आता है, जो पटाखे हम चलाते हैं उसके काम आता है, ग्लास एंड फर्टिलाइजर, ग्लास बनाने के और फर्टिलाइजर्स या फिर खाद बनाने के काम भी आता है। सॉल्ट्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय सम अदर रिएक्शन, ये जो सॉल्ट्स है उसे हम दूसरे रिएक्शन से भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटल, तो एसिड और मेटल को रिएक्ट करके हम ये कर सकते हैं, जैसे कि मेटल है Mg विच मीन्स मैग्नीशियम, और उसमें अगर हमने 2HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया है तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज MgCl2 एंड हाइड्रोजन विच इज H2, सो हाइड्रोजन गैस बनेगी और सॉल्ट बनेगा। बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटल ऑक्साइड, जब एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, CaO विच इज कैल्शियम ऑक्साइड, जो एक मेटल ऑक्साइड है। अब इसमें हमने H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर दिया है, जब इन दोनों को मिक्स किया है तो CaSO4 बना है विच इज कैल्शियम सल्फेट, दैट इज सॉल्ट, एंड इट also gives water, that is H2O which is water. So these all things we get when we react these. Now what are the properties of salts? Salts जो बनते हैं उनके क्या क्या properties हैं? Let's read. Mostly all the salts are soluble in water. जितने भी salts होते हैं सारे पानी में mix हो जाते हैं. Salts in water are good conductor of electricity. जितने भी salts हैं ये electricity के good conductors हैं. And salt on reacting with an acid produces another salt. So एक salt जब react करता है acid के साथ तो produce करता है दूसरा salt या फिर acid. A salt on reacting with a base produces another base and salt. जब salt किसी base के साथ react करता है तो वो base भी produce करता है, दूसरा base या फिर salt, दोनों ही चीजें वो produce करता है. Two salts on reacting with each other produce two new salts. जब दो अलग अलग सॉल्ट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो दो अलग टाइप के सॉल्ट्स को बनाते हैं. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स. नाउ लेट्स डू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. चलो अब हम इसके एक एक्टिविटी करके देखते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे वर्क करता है. प्रैक्टिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज वेरी यूजफुल इन वेरियस फील्ड्स एंड इट इज यूजफुल इन, so ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कहाँ यूजफुल है, लेट्स रीड अबाउट दैट. द फर्स्ट वन इज इंडाइजेशन. इंडाइजेशन क्या है, व्हेन ड्यू टू इनटेक ऑफ लॉट्स ऑफ स्पाइसी फूड, जब हम बहुत सारा स्पाइसी फूड खाते हैं, देयर बिकम्स एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो स्पाइसी फूड की वजह से हमारे पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बढ़ जाता है. दिस इज कॉल्ड एसिडिटी, इसे एसिडिटी कहते हैं. To neutralize this excess acid, we have to take antacid. So इस एसिड को कम करने के लिए हमें एंटासिड लेना पड़ता है. These antacids include milk of magnesia. इस एंटासिड में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है and it reduces the discomfort of acid in stomach or heartburn. So ये जो एंटासिड है वो जो है स्टमक की जो दिक्कत है उसे ठीक करता है, और जैसे लगता है कि कई बार हार्ट बर्न हो रहा है, मीन्स हमारा जो जलन है वो ऊपर तक पहुंच गया है, हार्ट तक पहुंच गया है, तो उसे भी क्योर करता है. दे न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड वी फील. ये जो एक्सेस एसिड होता है हमारी बॉडी में उसे जो है वो ठीक करता है, न्यूट्रलाइज करता है और हमें आराम मिलता है. नाउ द सेकंड इज एंट एंड बी स्टिंग. अगर एंट हमें काट लेती है, बी काट लेती है तो क्या होता है, हमारे जो है बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन सा होने लगता है. The sting of ant and bee contain formic acid. जो बॉडी में होता है, इनका जो स्टिंग होता है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है. That causes burning in our skin. जिससे हमारी स्किन ऐसा लगता है वो जल रही है. To get its effect neutralized, we apply soda paste or calamine lotion on it that contains bases in them. So इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो सोडा का पेस्ट लगाते हैं या फिर कैलामाइन लोशन लगाते हैं हम उस स्किन पे एरिया पे जहाँ पे हमारे जो है बी ने स्टिंग किया हुआ या एंट ने स्टिंग किया है.
सो इससे क्या होता है, वो एरिया जो है, क्योंकि उस सोल्यूशन में जो है बेस होता है जो उस एरिया को न्यूट्रलाइज कर देता है. नाउ द थर्ड इज सॉइल ट्रीटमेंट. सॉइल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? प्लांट ग्रो इन अ सुटेबल सॉइल दैट इज नाइदर टू एसिडिक नॉट टू बेसिक. सो जो प्लांट है वो कैसे एनवायरमेंट में ग्रो करते हैं? ऐसे एनवायरमेंट में जो ना ज्यादा एसिडिक हो ना ज्यादा बेसिक हो. टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड द फार्मर एड फर्टिलाइजर टू द सॉइल. अब जो क्रॉप के यील्ड को भी, क्रॉप्स ज्यादा से ज्यादा पैदा हो, इसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं? फर्टिलाइजर मिला देते हैं सॉइल में. दिस डिस्टर्ब्स द एसिडिटी बैलेंस ऑफ द सॉइल. अब जिसकी वजह से जो सॉइल की एसिडिटी बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाती है. सॉइल आदर बिकम्स मोर एसिडिक और मोर बेसिक देन रिक्वायर्ड. तो सॉइल जो कैसा बन जाता है? या तो मोर ज्यादा एसिडिक बन जाता है या फिर ज्यादा बेसिक बन जाते हैं केमिकल्स को मिलाने से. इफ द सॉइल बिकम्स टू एसिडिक, द फार्मर एड्स स्लेक्ड लाइम दैट इज चूना टू इट. अगर ज्यादा एसिडिक बन जाता है तो क्या करते हैं फार्मर्स? उसमें जो स्लेक्ड लाइम जैसे कि चूना मिला देते हैं. सो दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस यूटिलाइजेस द एक्सेस एसिड. जिससे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो जो एक्सेस एसिड चला गया था सॉइल में उसे न्यूट्रलाइज कर दें. इफ द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द सॉइल इंक्रीज, लेकिन अगर बेस इंक्रीज हो गया है then they then organic matter is added to soil that release the acid in soil. तो अब इसमें ऑर्गेनिक मैटर डाला जाता है जो एसिड को इंक्रीज कर देता है सॉइल में एंड मेंटेन द बैलेंस, और बैलेंस को मेंटेन करता है. ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर टू द सॉइल. नाउ द फोर्थ वन इज डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री वेस्ट. अब फैक्ट्री का जो वेस्ट है उसे डिस्पोज करने कैसे करते हैं? The waste that comes out of factory are highly rich in acidic content. So जो भी वेस्ट निकलता है फैक्ट्री से उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है एसिड होता है. These waste are to be disposed of in water bodies like rivers. और इस वेस्ट को क्या करते हैं? रखते तो है नहीं, इसे हम रिवर्स में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, बहा देते हैं. But if we dispose them as such, the water will be very badly affected and aquatic life will face difficulty to survive. लेकिन अगर हम इस वेस्ट को ऐसे ही बहा देंगे विद फुल ऑफ एसिड तो क्या होगा? जो भी वाटर लाइफ होगी, जो एनिमल्स होंगे, जो एक्वेटिक लाइफ होगी, वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो जिंदा नहीं रह पाएगी. So these wastes are first of all treated with bases so that the effect of these acids get neutralized and the damage of water bodies may be minimized. सो इसीलिए जो वेस्ट है इसे पहले अच्छे से ट्रीट किया जाता है. इसके अंदर जो एसिड होते हैं उसे जो है न्यूट्रलाइज किया जाता है बेसिस को उसमें मिला के, और उसके बाद ही इसे जो है वाटर बॉडीज में क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है. नाउ चिल्ड्रन लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न. सो आर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन citrus fruit, tamarind, vinegar, etc. are called acids. एसिड्स आर कोरोसिव जो हमारे हैंड्स को बर्न कर सकते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक. बेसेस आर बिटर एंड सोपी. सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा आर सम कॉमन बेसेस. Bases are found in soaps, baking soda, washing soda and milk of magnesia. To detect the presence of acid and bases we use indicators. Litmus, phenolphthalein, methyl orange, turmeric, etc. are some common indicators. Acid and bases react to form salt and water. This reaction is called the neutralization reaction. Neutralization reaction is very useful in daily life, like in treating acidity and stinks, soil and factory waste. Now let's quickly answer the given questions. Name the source of litmus. So litmus is obtained from litmus, litmus tree. And what happens when phenolphthalein is added to acid or bases? So children, you have read everything. So this you have to do on your own. What causes acidity in our stomach? So whenever we eat a lot of oily food, so what happens? The hydrochloric acid present in our stomach
that creates a burning sensation in our stomach, and because of it, it is said that we have there is acidity in our stomach. Now, what will happen if we touch the strong acid with our hands? So, if we will touch strong acids with our hand, what will happen? Our hands may get burned. Is a salt acidic or basic? So, children, find it out and write it here. What do you understand by neutralization? So, neutralization means the equal proportion of acid and bases is called neutralization. Means if somewhere acid is more, we add base to that so that the acid is not more and both the things are in neutral form. Now write down the uses of acids. So this, write it down your own. What are antacids and give some examples. So antacids are used for treating the acidity in our stomach, and children write down the examples here. Differentiate between acids and bases. So this you have to do on your own. Which gas is produced in the reaction of an acid with a metal? So जब हम acid को metal के साथ react करते हैं, what gas is produced? H2O or CO2. This you have to find out and write it here. So children, with this we have completed the chapter, and I hope that you have understood everything. And you have to complete the given exercise, and before that you have to read the chapter again so that you can answer the questions correctly. And I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay related.